अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्दनन्द गुरु अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु। आप सबको मेरा नमस्कार। और इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज के इस विशेष आयोजन में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। आदरणीय श्री आनंद कुमार जी, माननीय ऋचा अनिरुद्ध जी, राधे श्याम जी और शशिकरण जी, आप सबको मिलेनियम मैम्स परिवार की तरफ से मेरा अभिवादन और बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आज हम सब मिलके इतिहास रचने जा रहे हैं जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 1000 से भी ज्यादा लेडीज के साथ टीचर्स डे मनाने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है, और वो भी सुपर 30 के फाउंडर माननीय आनंद कुमार जी के साथ। Every success story starts with a dream, but it's not enough to have a dream. You should have the conviction to implement it. And 28 years ago, our mentors, Mr. Vishnu Dhanuka and Mr. Sanjay Bhuvania, had a dream, and today we know it better as Millennium MAMS. It wasn't smooth sailing, but our mentors had the vision and the unwavering commitment to overcome all odds. Today, we have more than 5,000 empowered women and 2 prominent chapters, Kolkata and Bangalore. The present crisis has created unprecedented opportunities for all of us. And we started online sessions right after the lockdown, and we've had 60 plus speakers till date from all walks of life who have inspired us with their unique stories and helped us take our learning to the next level. Our mentors had a vision and wanted women to be Atmanirbhar in the true sense of the term, through financial independence. Millennium MAMS is not just about finance and investing. Yes, I feel proud to say that it is about helping women realize their potential and a holistic approach to empowerment. We could connect with women not only in different cities of India in this pandemic, but the world over. If and about so many things which happen at Millennium MAMS, I would like to, say a few words. Because, on this occasion of Teachers' Day, I really want to express my gratitude what I have got from this organization. If you are an aspiring actor or want to be a part of theater, then we have Vajoot, our theater arm, to explore your talent. For book lovers and promising authors, Suryoday, our literary forum, to research at Anveshna Group, discover your spiritual side with Sanskar classes, or unwind with yoga lessons. We also have Chanakya Wing to bring about a change in the society. A philanthropic wing, Sahyog, it has reached out to more than 10,000 families during the crisis and also after the Amphan disaster. Saraswati classes, the name itself speaks for it, what it means, for the in-depth learning. And of course, how can we forget Mr. Warren Buffett? Buffett Club to understand the investing principles of the legendary investor, Mr. Warren Buffett. Millennium Youth to get the youth in the mainstream. And the message is simple: don't let your talent go to waste and be
a change maker. We are the largest women community to attend the AGMs of multinational and blue chip companies and have been recognized by the top corporate groups like the Tatas and many more. We went all the way to Omaha to attend the AGM of Berkshire Hathaway, attended by more than 40,000 global investors. The bottom line is that you get to design your unique blueprint for success under the able guidance of our mentors. Learning is the constant, is the only constant at Millennium Mams. You invest in yourself and your potential to become the best version of yourself. खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल, तू बोल तेरी रजा क्या है? Life needs to be lived to its fullest, my dear friends. And we have dedicated members, coordinators, monitors, and committee members. Together, we are a family. And today, on this auspicious occasion, it gives me immense pleasure to announce our very new chapters, the Mumbai and Hyderabad chapter. Let us all join hands to make it a huge success. Dream it, believe it, achieve it. This is the mantra for a fulfilling life. Take risks, take the first step. I did 8 years ago when I joined this esteemed organization, Millennium Mams. And I'm proud to say it was the best decision of my life. Thank you. Thank you, Rachna. I resonate with every word that you have said. माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये स्वीकार न करता हो कि उसके जीवन को बनाने में उसके माता और शिक्षक का योगदान ना हो. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये शब्द गुरु के प्रति हमारे कृतज्ञता की भावनाओं को इतने सुंदर रूप से अभिव्यक्त करती है. Dhanuka sir and Bhuvania sir, we thank you for creating Millennium Mams and enabling us to shine and be on our journey of learning and transformation. I am proud to be part of this great organization. When I joined Millennium Mams, I was a homemaker. But now I can say that I'm a successful investor as well. Through Millennium Mams, I could start on my journey for spiritual growth, explore acting through theater, and was given the necessary boost and skills to pursue my creative writing. Millennium Mams has enabled us to become the complete Renaissance women of the 21st century who can do it all and have it all. We are truly blessed to have mentors like Dhanuka sir and Bhuvania sir. अब मैं धानुका सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी एक प्यारी सी कविता जिसे उन्होंने खुद रची है वो हम सब के सामने प्रस्तुत करें. नमस्कार अनंत कुमार जी और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड गेस्ट्स आल्सो. दिस इज अ ह्यूज गैदरिंग and I think one of the best teachers day we are celebrating under constraint. तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी छात्रा है. कई लोगों की सुनी भी होगी. सब कुछ भूल आ जाती है जब मेरी कक्षा में उम्र का आभास पूरा खत्म हो जाता है शायद. छोटे बच्चों की तरह अतीत में पूर्ण प्रवेश कर छोटे बच्चों की तरह अतीत में पूर्ण प्रवेश कर भूल जाती है कुछ पल अपना एक जिम्मेदार व्यक्तित्व. बचपन बीत गया तो लगता है कितना रोचक था. बचपन बीत गया तो लगता है कितना रोचक था. पूर्ण स्वतंत्रता थी, हमेशा मनमौजी रहने की, कोई मुखौटा नहीं.
इतना सरल सा नटखट बना, हर पल अभी में जीना, भविष्य के प्रपंच से मुक्त, ऐसी ही चंचलता दे पाती हैं फिर से ये कक्षाएं, ऐसी ही चंचलता दे पाती हैं फिर से ये कक्षाएं, आगे बढ़ने की दौड़, आगे बढ़ने की दौड़, पर आज की दौड़ से एकदम अलग। एक ही विचार वाले, आनंद कुमार जी समझेंगे इस बात को, एक ही विचार वाले बहुत से बच्चों की मीठी दोस्ती, एक ही विचार वाले बहुत से बच्चों की मीठी दोस्ती सारा व्यक्तित्वपूर्ण और महत्वपूर्ण परिवर्तन के मोड़ पर। थैंक यू सर, आपकी ये सुंदर कविता हम सबके लिए प्रेरणा और हिम्मत का स्रोत है। हमारे साथ अपनी ये कविता शेयर कर आपने हमें भी इसका एक अंश बनाया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब हम सब मिलकर विश्व के सारे गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। We now present a theatre composition which has been composed by our very own theatre group Vajood, directed by renowned theatre artist and director Shri Atul Satya Kaushik. विश्व गुरु, जी हाँ, विश्व गुरु है यही वो नाम जो इतिहास ने हमको दिया। ज्ञान का सूरज बने अधिकार ये हमको दिया, और गुरुओं ने हमारे रास्ते दुर्गम चले, अंततः संसार आया ज्ञान की छाया तले। कुछ नहीं था जब यहाँ सारे सकल संसार में, हो रही थी सारी सृष्टि अज्ञान के भंडार में। आए तब धरती पे बन आदि गुरु सप्त ऋषि, और फिर स्थापित करी सत्ता पुराणों वेदों की। एक वशिष्ठ एक विश्वामित्र, दो थे शिक्षक राम के, दोनों गुरु मिलकर बने मार्गदर्शक राम के। था वशिष्ठ के पास पुस्तक ज्ञान सर्वत्र का, व्यवहार में लाओ ये ज्ञान आदेश विश्वामित्र का। होती गुरु की महिमा क्या, ये द्रोण से सीखे थे हम, हो सामने या दूर हो, आशीष उनका होता न कम। प्रत्यक्ष शिक्षा से जहां अर्जुन सा योद्धा रच दिया, तो वहीं एकलव्य को परोक्ष रहे सब कुछ दिया। जब भी किसी भी शिष्य के मन में कोई संदेह था, तब दिया भागवत ने उसको मंत्र गीता ज्ञान का। श्री कृष्ण से बेहतर गुरु संसार में क्या ही हुआ, अर्जुन निमित्त था मात्र, सब संसार उनका शिष्य। कुछ असंभव है नहीं, मन में गुरु जो ठान ले, चाणक्य सा कोई गुरु संकल्प मन में मान ले। फिर सड़क पे बैठे किसी चंद्रगुप्त को ढूंढकर शासक बना देता है जग में, गुरु आंखें मूंद। काली माँ के द्वार पर वो पतला दुबला साधु था, नाम उसका परमहंस, बातों में जिसके जादू था। राह खोजते नरेन उसकी शरण में आ गया, तब बन विवेकानंद वो जग के पटल पर छा गया। इस कड़ी में ही रहे वो देश के शिक्षक महान, सर्वपल्ली राधा कृष्णन महापुरुष महाप्राण। ये सिखाया कि जरूरी है बहुत संघर्ष भी, रत्न भारत के बने हम सब के वो आदर्श भी। आज कलयुग में भी ऐसे गुरु एक महान हैं, आनंद जिनका नाम है, गुरुता की वो पहचान है। प्रतिभा नहीं मोहताज धन की, ये सिखाया आपने। राजा का बेटा ही क्यों बने राजा, ये बताया आपने। आप है गुरु द्रोण भी और आप ही चाणक्य है, देश की शोभा बढ़ाता आपका हर शिष्य है। आज के शिक्षक दिवस पर आपको शत शत नमन, आपकी छाया में फिर विश्व गुरु बन जाए हम। आपकी छत्र छाया में फिर विश्व गुरु बन जाए हम। आज हमारे मुख्य अतिथि विश्व गुरु की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। अपने शिष्यों पर उनकी जो निस्वार्थ भावना है, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। A very warm welcome to our guest of honor today, Mr. आनंद कुमार। आज शिक्षक दिवस पर आनंद कुमार जी जैसे महान शिक्षक हमारे फोरम में आए हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। Mr. Anand Kumar ji is a noted mathematics teacher, but more than being a teacher,
He's also the man behind a silent social transition that he is ushering in through his revolutionary education initiative called the Super 30. He was fascinated by mathematics since childhood, and he formed a mathematics club called the Ramanujam School of Mathematics while he was still graduating. In 1994, Anandji got an opportunity to pursue higher education in the Cambridge University, but his poor financial health came in his way. We all know about his story from the famous Bollywood movie Super 30, don't we? Having witnessed extreme financial hardship since childhood, he felt the pangs of poverty so much that he decided to do something for the poor students by starting the Super 30 program. In the 17 years of this program, a phenomenal 510 students have made to the top technical institutes of India, mostly the Indian Institute of Technology, IIT. Let's all show him our appreciation for his program by giving him a big round of applause. But remember to be on mute. What is remarkable about this achievement is that most of the successful candidates have been from the most underprivileged sections of the society. They get free food, lodging, and above all, free coaching by Mr. Anand Kumar himself. A Japanese movie is also made on Super 30, calling it as the secret weapon of India. हाँ, Super 30 हमारा गुप्त एवं शक्तिशाली हथियार है. He has been honored by various organizations all over the world, including France, USA, UK, Canada, Germany. Super 30 has been included in the list of 4 most innovative schools in the whole world. The list of awards received by Anandji is big. To name a few, he has been awarded Maulana Abdul Kalam Shiksha Purushkar, Ramanujam Mathematics Award, Maharishi Ved Vyas Award, Rashtriya Bal Kalyan Award by the President of India, Mr. Ramnath Kovind. हमारे महान पर अति सरल अतिथि के लिए जितना भी कहूँ कम है. इन्होंने जो क्रांतिकारी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया है, उससे राजा का बेटा राजा अब तो नहीं बनेगा. राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. तो उठो, पढ़ो, बढ़ो और हकदार बनो. आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंद कुमार जी के 2 स्टूडेंट्स, राधे श्याम जी और शशि किरण जी. राधे श्याम जी ये कुशमोर नामक ग्राम से यूपी से हैं. इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ली और बाद में सुपर 30 से जुड़े. आज ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के मैनेजर के पोस्ट पे हैं. और शशि किरण जी ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं. इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और जापान से हाई स्पीड रेलवे की ट्रेनिंग भी ली है. मोस्ट वेलकम ऑन मिलेनियम मैम्स. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और अब इस शाम को और भी रोमांचक बनाने के लिए हमारे साथ हैं मिस रिचा अनिरुद्ध. रिचा जी को कौन नहीं जानता. शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. She has received many prestigious honors and awards. She is a journalist, an author, RJ, talk show host, producer, editor, TV personality. In fact, she is one of the most popular faces on the Indian television. She has been telling stories and touching lives through her show Zindagi with Richa. She has appeared on the popular show Kaun Banega Crorepati as an expert advisor. She is actively involved in philanthropy and works of social causes like child education, girl-child empowerment, and taking care of the environment. आज की हमारी सूत्रधार है रिचा जी और इनका मानना है जिंदगी ही सबसे बड़ी शिक्षक है. जिंदगी बैठ कर आमने सामने हम बात करेंगे. एक नई शुरुआत करेंगे. जिंदगी with Richa.
चाहे रात, देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात। दिन हो चाहे रात, देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात। जब भी जगे नींद आँखों से, एक नए ख्वाब की हम बात करेंगे, एक नई सुबह तलाश करेंगे। जिंदगी with Richa। रिचा जी, वी वार्मली वेलकम यू टू मिलेनियम मैम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू रिचा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम सबके लिए जिंदगी बहुत बड़ी शिक्षक होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर कोई टीचर भी होता है, क्योंकि हर किसी को हमारे आसपास जिंदगी में जो होते हैं लोग होते हैं उनको हम कुछ सबक सिखाते हैं, और हमारी जिंदगी में जो आता है वो हमें सबक सिखाता है। और आनंद कुमार जी तो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स वी एवर नोन हमारे साथ हैं। तो बस शुरू करूंगी इस पूरी चर्चा को हर शिक्षक को आज एक वंदना करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आनंद कुमार के लिए मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उन पत्रकारों में से होंगी जिन्होंने आनंद जी का सबसे ज्यादा बार इंटरव्यू लिया है, और इनसे इतना ज्यादा अपनापन मेरा हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है मुझे इनके बारे में सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, लेकिन मेरी हमेशा भूमिका ये होती है कि मैं आनंद की जिंदगी के जाने अनजाने सब पहलू उन लोगों तक ला पाऊं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी आज ये कोशिश होगी, और आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ चुके हैं, तो जो सवाल होंगे वो भी हम साथ साथ लेते रहेंगे। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आपसे यही, चलिए आज शिक्षक दिवस से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पूरी दुनिया में अब आपका आपकी तारीफ होती है शिक्षक के तौर पे, और शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान उसके विद्यार्थी होते हैं। तो आपके विद्यार्थियों ने जो आपको पहचान दिलाई है वो बहुत गजब की है, लेकिन आप खुद को एक टीचर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किस चीज को मानते हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी किस चीज को मानते हैं? सच पूछे कि जो बच्चों ने हमारी पहचान बनाई है, जिन बच्चों ने मेरी इज्जत बढ़ाई है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अब ये तो सोचना पड़ेगा रिचा जी ईमानदारी से। अपनी कमजोरी तो कोई बताता नहीं है, थोड़ा देर का टाइम दीजिए तो अगले प्रोग्राम में जरूर अपनी कमजोरी तो मुझे लगता है आपकी कमजोरी, जो जैसे कहा ना कि कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी कमजोरी होती है। आपके सारे बच्चे भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। जिस तरह से मैंने आपका इमोशनल अटैचमेंट इतने सालों में बच्चों के साथ, और मैं सबको बताना चाहूंगी, मैं पटना में आनंद जी के घर जा चुकी हूँ, जहाँ पर सब बच्चे इनके परिवार की तरह रहते हैं। तो ऐसा नहीं है आनंद जी कि वही बच्चे सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है आपकी? सही बात है। अभी लॉकडाउन में तो थोड़ा बच्चे दूर हो गए ये कोरोना वायरस के चलते, वरना बच्चे हमारे साथ रहते। हमारी कमजोरी मजबूरी भी हुआ है, उनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकता है। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना कि हम लोग जुड़े हैं, वरना कलकत्ता बुलाती मैडम तो शायद मैं ना भी आ पाता। तो इसलिए हमारी ताकत भी है, कमजोरी भी है। आपने सही कहा, और मैं भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज से करीब 12-13 साल पहले रिचा जी ने एक जिंदगी लाइव पर बड़ा अच्छा शो किया था हमारे साथ। वो इतनी चर्चा हुई उस शो की, इतनी चर्चा हुई कि पूछिए नहीं। चाहे केवीसी हो, चाहे फिल्म बनने की यात्रा हो, सब लोग उस शो का रेफरेंस देते हैं। उसके बाद रिचा जी से कई बार मुलाकात हुई, और कई ऐसे हम लोग कार्यक्रम में मिले, और मैं भी इनसे काफी प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि इनके जिंदगी में भी एक बात देखा, कुछ नया करने की चाहत देखा, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको सामने लाके दूसरों को मोटिवेट करने की जो इनमें इच्छा है वो अद्भुत है। और ये सच में एक शिक्षक है। अपने रिचा विथ जो अपने शो में दिखाती है,
लाइफ जिंदगी में, उसमें ये शिक्षक का काम करती है कि भाई देखिए आप इन कहानियों को और सीखिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करिए। तो शिक्षक सब अलग अलग तौर पर हम लोग हैं, लेकिन हम दोनों शिक्षक ही का काम कर रहे हैं। जी, और अब आनंद थोड़ा सा हम सफर की आपकी बात करेंगे सब लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे करंट चीज से अगर हम शुरू करें, आप एक बहुत ही सहज सरल इंसान, अपने आप को बहुत, मैंने कभी आपको बदलते नहीं देखा 12 साल से अभी तक। अब आपके ऊपर फिल्म जबकि बन गई है, ऋतिक रोशन ने आपका किरदार निभा दिया है, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदली फिल्म के बाद, या समाज में आपकी पहचान, या हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? हम तो वही आनंद कुमार हैं, लोगों की नजर बदल जाती है, लोगों का देखने का नजरिया, अरे आनंद कुमार इस पर फिल्म बन गई। आज भी हमारे देश में हमसे भी अच्छा काम करने वाले हजारों लाखों शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं। उन शिक्षकों तक भी पहुंचने की जरूरत है, और ऋचा जी तो अपने शो में वैसे शिक्षकों को या वैसे लोगों को लाते हैं, तो समाज का नजरिया बदल जाता है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, और स्वाभाविक तौर पर, ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ती, कि मैं जो हूँ वही बना रहूं, जो मैं था वही हमारी पहचान थी, उसी के बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, आगे भी जिंदगी में रहूं, मैं इसका प्रयास करता हूँ। फिल्म से जब फिल्म बन रही थी, उससे जुड़े कुछ आप संस्मरण ऐसे आज सबके साथ शेयर करना चाहेंगे जो नहीं अभी ज्यादा लोगों को पता है? ऋतिक के साथ आपका इंटरेक्शन, या कैसा था फिल्म वालों को, फिल्म बनाने वालों को समझाना कि कैसे आप काम करते हैं? वो लोग क्या पटना आए थे, आपकी लाइफ को समझा था, कैसे हुआ था? थोड़ा सा फिल्म के संस्मरण शेयर करें। हम तो नाम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि किसी को एम्बैरेस नहीं करेंगे। ऋचा जी, आपको भी पता होगा कि आपने एक बहुत बड़े डायरेक्टर से मुझे मिलवाया था, और हम लोग मिले थे बॉम्बे में उस डायरेक्टर साहब से, और वो भी चाहते थे कि फिल्म बनाए, लेकिन तब तक विकास बहल और कई लोगों ने बहुत ज्यादा काम कर दिया था और अच्छा काम किया था, तो हम लोगों के लिए बड़ा पेश हो गया था कि भाई किस डायरेक्टर से, किस एक्टर से फिल्म बनाए। जिंदगी यही होती है, जब आपको मौके नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं, और अगर आप निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। ये इसी का नाम जिंदगी है। जैसे आज से 9 साल पहले संजीव दत्ता जी ने स्क्रिप्ट लिखा था, अनुराग बासु आए घर पर कि मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर वो फिल्म का इंटरेस्ट लूज कर दिया कि भाई एक मास्टर आदमी है, सीधा साधा आदमी, इस पर सिनेमा चलेगा कि नहीं, पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, छोड़ो हटाओ। बाद में धीरे धीरे मामला जब बढ़ते चला गया, तो रीता जी इसकी गवाह भी है, तो बहुत बड़े बड़े स्टार, मैं नाम नहीं लूंगा, और डायरेक्टर मुझसे अप्रोच किए कि भाई मुझे राइट दे दो, मुझे राइट दे दो। लेकिन मैंने ऋतिक में देखा कि ऋतिक रोशन एक अच्छे स्टूडेंट थे। कई लोगों ने कहा कि भाई मैं बड़ा एक्टर हूं, मैं आपकी फिल्म को 3 महीने में कर दूंगा, किसी ने कहा 6 महीने में कहूंगा, लेकिन ऋतिक रोशन ने कहा कि इस फिल्म को मैं 1 साल में करूंगा। 1 साल तो कम से कम समय इसके लिए चाहिए कि आपके हाव भाव और आपके अंदाज को सीखने के लिए। तो शिक्षक के तौर पर मुझे लगा कि जो सीखना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, उसी का आने वाला कल होता है। इसलिए ऋतिक जी के साथ मौका मिलना चाहिए हम लोगों को, और मिला, और बहुत अच्छा फिर फिल्म बनी, आप लोग देखे ही। तो रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं। तो चलिए, अब ऐसे मैं सवाल बाद में लेने वाली थी, लेकिन एक सवाल सुनीता बुलचंदानी जी का यही आया है। डिड यू ऑलवेज हैव ऋतिक रोशन एज योर चॉइस to essay the role of Anand Kumar in Super 30? It is one of the best films that portrays the pros and cons of our education system. तो क्या आपकी सबसे पहले शुरू से चॉइस ऋतिक रोशन ही थे? नहीं, ऋतिक रोशन जी नहीं थे। ऋतिक रोशन जी के बारे में मेरे मन में दूसरा ही था कि भाई मैं एक देहाती मास्टर हूँ, वो एकदम ग्रीक गॉड जैसे स्मार्ट हैंडसम आदमी, हिंदी बोलना मुश्किल, बिहारी तो बोल नहीं पाएंगे हम लोगों के लैंग्वेज में, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई ना, तो उनके मन में जो फायर देखा, जो उनको फिल्म करने की चाहत देखी, वो एकदम अलग थी, और वैसे ही उनके चेहरे पर चमक और ललक थी जैसा मैं शशि और राधे श्याम के चेहरे पर देखा था जब ये लोग मुझसे पढ़ने आए। कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी। उन्होंने बोला ऋतिक रोशन जी ने कि आनंद सर, ये फिल्म आप मुझे दीजिए, अगर मेरे सर पर कोई पिस्टल भी भिड़ा देगा तब भी मैं कहूंगा कि मैं ये फिल्म करूंगा, इतना मैं डेस्परेट हूं। तो इस तरह की जो प्यास मैंने देखी ना, तो मुझे लगा कि उनको फिल्म देनी चाहिए। और मैं एक दर्शकों को बात बताना चाहूंगा कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, फिल्म पर चर्चा चलती थी, तो बॉम्बे बार बार जाके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था। एक बार तो 2 घंटे की मीटिंग थी, 5-7 घंटे चली,
और ऋतिक जी मुझे सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए, नीचे छोड़ दे तो उनके पैरों में चप्पल नहीं था, वो चप्पल तक पहनना भूल गए। तो इतना वो खो जाते थे। तो हर इंसान एज ए टीचर मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप बिजनेस करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, डॉक्टर, इंजीनियर है, कुछ भी हो, अपने आप को पूरी ताकत के साथ किसी काम में झोंकिएगा, पूरी अपनी ताकत लगाइएगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा जरूर होगा। आपकी जिंदगी के कितने करीब तक पहुंच पाई फिल्म? जैसे कई बार कहते हैं कि भाई बिल्कुल 100% एक्यूरेसी थी, 90% छू पाए। आज अगर आप बताना चाहें, हाउ एक्यूरेट इज द फिल्म? एक्टिंग और डायरेक्शन के 9 पर तो 100% है, ये दोनों बातों पर। लेकिन कहानी 90% है, उससे थोड़ा ज्यादा ही सच है। कुछ कुछ फिक्शन थोड़ा सा दर्शकों को लुभाने के लिए, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चलाने के लिए दिया गया है। लेकिन एक्टिंग के मामले में हमको नहीं लगता कि ऋतिक जी से कोई अच्छा बेहतर कर सकता था। बहुत अच्छा उन्होंने किया। और बहुत, जब फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था तो हमारी छोटी बच्ची, मेरा भतीजा सब दौड़ा। पहला दिन हम लोग ट्रेलर साथ में परिवार के देख रहे थे, अरे पापा पापा कहते हुए दौड़ा। तो इतना दिन तक उन लोगों के दिमाग में कई दिनों तक रहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, पापा ही है। बाद में अब जाके उन लोगों को पता चला कि ऋतिक रोशन। ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक पब्लिक ओपिनियन ज्यादातर ये थी कि नहीं कर पाएंगे शायद ऋतिक उतना, क्योंकि बिहारी एक्सेंट जैसा आपने कहा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा किया। चलिए अब असली जिंदगी पे, अब रियल लाइफ से रियल लाइफ पर आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी, आप सबको आपकी कहानी के बारे में तो पता है, लेकिन अगर हम शुरुआती सफर से अब तक की बात करें, आज आनंद जब पूरी दुनिया आपको जान गई है, सब हो गया, फिल्म बन गई है, अपने सफर को जब आप देखते हैं तो किस तरह से, क्या देखते हैं? कितना उतार चढ़ाव, संघर्ष, आपके ऊपर जानलेवा हमले होना, तो थोड़ा सा अगर अपनी जर्नी को आप हमारे, शायद अगर कोई हो जिसको नहीं पता हो उसको देखिए ऋचा जी, ये जीवन का दस्तूर है कि जब बड़ी चीजें मिलने वाली होती हैं, कुछ अच्छा होने वाली होती है, तो दुर्घटनाएं होती है, तकलीफें होती है, मुसीबतें आती है। जब फिल्म बनने के बहुत पहले सुपर 30 का नाम हो रहा था, आपने अपने चैनल पर दिखाया था, काफी तारीफ होने लगी तो लोग जलने लगे। और कुछ जीवन में बहुत लोग ऐसा नहीं होते, 2-4 लोग ऐसा मिल जाएंगे हर आदमी के जिंदगी में। अभी हमारे मित्र हैं, काफी परेशानी में फंसे हुए थे, उन पर कई आरोप लगे हुए थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, और बड़ा अननेचुरल तरीके से सब हो रहा था। हमने पूछा कि जरूर आपका कोई एक दुश्मन होगा, तो उन्होंने बोला नहीं, हमने सोचिए जरूर होगा। फिर उन्होंने शर्माते हुए बताया कि एक आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे हर आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके काम में 1-2 लोग जो खुद स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, जिंदगी से हारे और थके हुए रहते हैं, कोई उनमें पॉजिटिव बातें नहीं होती है, 2 लोगों को वो गिराने का प्रयास करते हैं, लोगों को परेशान करते। तो ऐसे लोगों ने गुवाहाटी में केस करवा दिया। कुछ ऐसे लड़कों से जो आज तक मुझसे पढ़ा नहीं, मैंने किसी से, ऋचा जी जानती है, इनके चैनल में या कहीं भी कई बार जाने पर कई लोगों ने चंदे का ऑफर किया। आज तक हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, अंबानी जी हो, हर लोगों ने चंदे की बात की। हमने आज तक 1 रुपया किसी से चंदा नहीं दिया। जो लेक्चर दे के या कुछ ट्यूशन पढ़ा के पैसे आते हैं, उसी से हम लोगों की और बच्चों की दाल रोटी चलती। किसी से हमने पैसा कुछ भी नहीं लिया। फिर भी माफिया ने मुझसे केस मुकदमा में फंसाया, पटना हाई कोर्ट, वहां कई बार तो केस मुकदमा कर दिया। हमारे यहाँ जो वॉलंटियर था उसको 3 महीने जेल में रखा, बाद में पता चला सारे केस फर्जी है, उसको फंसाया गया था। तो ये सब जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ लीजिए, ये सब चलते रहता है। तो जब भी अच्छी चीजें चलती है तो उसका साइड इफेक्ट दवा का जैसे होता है, कुछ न कुछ आपके साथ चलते रहेगी, इसलिए घबराना उससे नहीं है। ऋचा जी जैसे लोग उस दौर में भी हमारे बारे में ट्विटर पर लिखते थे, फोन करते थे, बताइए आनंद जी मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी, मैं किस जर्नलिस्ट के आपके सपोर्ट में बोलने के लिए बोल सकती हूँ, आप इतना अच्छा काम करते हैं। मैं घर आई हूँ, कई बार बच्चों से मिली, मैं इतना ही बोलता था, ऋचा जी आप इतना बोल रही है, यही हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धन का काम कर रहा है। आनंद, हर साल 25 से 30 बच्चे सिलेक्ट हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। सुपर 30 का राज क्या है? अच्छा होगा ऋचा जी की बच्चे राज बताएंगे, मास्टर राज बताएगा, उससे अच्छा है बच्चे बताएंगे। बच्चे बताएंगे कि क्या कुछ था कि राधे श्याम के बारे में मैं और बताना चाहूंगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। राधे श्याम बेचारा बहुत संघर्ष किया है और हर लोगों के लिए, पूरे देश में हर बच्चों के लिए प्रेरणा का है। राधे श्याम की कहानी है कि पिताजी मजदूरी करते थे और एक बार राधे श्याम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, जा रहा था, बेचारा गिर गया अचानक, उसकी आंख में एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा चुभ गया।
इलाहाबाद लोग ले गए, पैसे नहीं थे, ऑपरेशन नहीं हो पाया, और उसने एक आंख खो दिया, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं खोया, मेहनत करते रह गया। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास आया, पढ़ा लिखा, और पढ़ लिख कर उन 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल के बच्चों को भी मात देकर IIT पहुंच गया। वहां भी पढ़ाई किया, अपने प्रतिभा का परिचय दिया, और आज बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना, वो ताकत है, ऐसे बच्चे ही हमारी संबल है, हिम्मत है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, शशि की यही कहानी है। बेचारा गरीब, किताब नहीं खरीद पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, पिताजी बहुत मुश्किल से कुछ रुपया देते थे तो दाल रोटी चलती थी। आज देखिए कि इतना बड़ा अधिकारी रेलवे में बन जा रहा है। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे देश में। ये प्रेरणा देती है कि हर इंसान अगर कुछ चाहेगा तो बड़ा कर सकता है। या आपने याद करिए, आप अरबाज का एक इंटरव्यू लिए थे, जी। उसके फादर अंडा बेचते हैं सड़कों पर, और बच्चा IIT बॉम्बे पहुंच गया। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां बनी। जी। मैं राधे श्याम जी और शशि किरण जी के पास जाना चाहूंगी। उससे पहले हमारे साथ जितने दोस्त जुड़े हुए उनको मैं एक अपना इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जब आनंद जी के साथ हम लोग शूट कर रहे थे जिंदगी लाइव, और ये बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है 2009 या 10 की। तो उस साल तो हमारे ऑडियंस में उस साल इनके जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सारे बच्चे आए थे। और मैं सबसे पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो कोई कह रहा था सब्जी बेचते हैं, कोई कुछ कह रहा था। और फिर मैंने पूछा आप क्या करोगे, तो कोई कह रहा था IIT बॉम्बे जा रहा हूँ, IIT दिल्ली। तो वो अपने आप में कितना रोमांचक अनुभव था। लेकिन उसमें एक बच्चे ने मुझसे बात कही थी कि मैडम गरीबी क्या होती है, आप इस AC स्टूडियो में बैठ के समझ नहीं पाएंगी। और आज देखिए 10 साल हो गए, मैं उस बच्चे को नहीं भुला पाई हूँ, क्योंकि अंदर से वाकई मुझे ऐसा लगा कि बातें करना कुछ और बात होती है, कि ठीक है हम सब एम्पैथी दिखाते हैं, लेकिन उसने इतनी सही बात कही कि आप नहीं समझ पाएंगे हम जिस गरीबी से आए। और एक बच्चे ने कहा कि मुझे स्ट्रेस ये है कि मैं जब 4 साल कॉलेज में पढ़ूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि वो अपने माता पिता का हाथ बटाता था। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन राधे श्याम जी और शशि किरण जी को भी अब हम इस चर्चा में लाना चाहेंगे, और दोनों से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आज शिक्षक दिवस है। एक तो आनंद एज अ टीचर, आपकी जिंदगी तो बदली ही है उन्होंने। आप क्या बताना चाहेंगे आज पूरी दुनिया को, जो आपने उनके साथ अपना निजी अनुभव शेयर किए। और जैसा मैंने इनसे पूछा कि सुपर 30 कि जो इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसका राज क्या है। राधे श्याम जी पहले आ जाएं एक बार। राधे श्याम जी हैं हमारे साथ? शशि किरण जी दोनों ही नहीं मुझे यहाँ दिख रहे। हाँ मैं हूँ ऋचा जी। जी शशि किरण जी आप बता दीजिए। जी सबसे पहले तो आनंद सर को बहुत बहुत प्रणाम। आज मिलेनियम मैम्स और ऋचा जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज टीचर डे के दिन आनंद कुमार सर और आप सब लोग के साथ मिलने का मौका मिला। जैसा कि सर ने भी बताया, मेरे जीवन में भी बहुत ही संघर्ष था और बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। पिताजी एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी और हम लोग 5 भाई बहन थे। बहुत ही पुराना सा एक घर था, एक ही कमरे में रहते थे। तो जीवन में ऐसी थी परिस्थितियां, संघर्ष का ज्यादा था कि कभी लगता था नहीं कि क्या कर पाएंगे लाइफ में, और एक अंतहीन सा लगता था जीवन में। लेकिन माता पिता का सपोर्ट था और उन्होंने पूरा एफर्ट किया कि पढ़ाई अच्छे से हो पाए। और मैं सौभाग्यशाली था कि आनंद सर का फिर मुझे सपोर्ट मिल पाया। सर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, जिससे कि मुझे पता चल पाया कि हाँ स्ट्रगल है अगर लाइफ में तो ही आपकी विजय हो सकती है। सर की लाइफ को देख करके पता चला कि हमारी लाइफ के स्ट्रगल तो बहुत ही कम है। सर की क्लासेस में जो सर का पढ़ाने का तरीका होता था, मैं आज भी आज रात में ही कल रात में मैं जेई का पेपर देख रहा था तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे कि जो सर पढ़ाते थे अपने यूनिक स्टाइल में, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के सबको एक साथ पढ़ाते थे। वो एक अलग ही अनुभव था। आज मुझे वैसी अनुभूति हो रही थी। तो बहुत ही मैं कहना चाहूंगा कि जैसा सर ने कहा कि संघर्ष जो है आदमी का व्यक्तित्व को और भी प्रखर बनाता है। तो जितना आप संघर्ष करेंगे उतनी ही आपको लगेगा कि लाइफ में मुझे एक बहुत बड़े मुकाम पे जब पहुंचा। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं उन सारे बीते हुए दिन को, तो फिर लगता है कि यस कितना हमने अचीव किया है। सर से अभी पुनः दोबारा मुलाकात हुई थी सुपर 30 मूवी के दौरान, प्रमोशन पे जब आया था जयपुर में और मौका मिला मिलने का। मेरी यही एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए भी जो कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, कि
संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा हमने सोचा नहीं था लेकिन मिल गया। सो मैं बहुत ही आभारी हूँ आनंद सर का भी, और पुनः उनको आशीर्वाद देना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा कि सर जो भी हूँ आज आपकी बदौलत हूँ, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिएगा। क्या बात है। राधे श्याम जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? नहीं है। शशि जी, आज मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आनंद जी से तो मैं कई बार ये चीज सुन चुकी हूँ, मूवी में भी दिखाया है, वो जो एक एनिमेशन से ये हमेशा, देखिए क्या होता है ना, जिस बैकग्राउंड के बच्चे जो आते हैं, जो आनंद के पास सबसे पहले, मुझे लगता है उनको मैथ्स से पहले मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई ये बताने वाला हो कि तुम कर सकते हो। तो वो जो मैं कैरेक्टर्स का नाम भूल रही हूँ आनंद जी, वो भोलू कहानी, हाँ, तो आप में से कौन वो कहानी सुनाना चाहेगा हमारे सब व्यूअर्स को? सर हमेशा जो है, जैसा मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेकर के बताया करते थे कि भोलू जो है एक स्टूडेंट है, रिक्की एक स्टूडेंट है, एक गरीब है और एक अमीर है, तो कैसे जो है वो भोलू भी जो है अपने प्रयासों से सफल हो पाता है। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ, जो प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच होता था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उससे जुड़ने से हमें एहसास हुआ कि कोई भी समस्या, या तो मैथ्स का प्रॉब्लम या लाइफ की प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको सिस्टमैटिक वे से अप्रोच करें और एक एकाग्र मन से अगर उसको अप्रोच करें, तो आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव था, और आपने याद दिलाया तो हमें वो दिन याद आ गए कि कैसे सर का जो पढ़ाने का तरीका होता था, बहुत ही अच्छी सुखद अनुभूति महसूस होता है आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद। जी आनंद, आपकी जिंदगी का सुपर 30 का सफर शुरू ही इस बात से हुआ था कि आप विदेश नहीं जा पाए थे, आपके पास उतनी धनराशि नहीं थी जिसकी जरूरत थी टिकट वगैरह या बाकी खर्चों के लिए। आज ठीक है, आप बहुत बड़ी हस्ती हो गए, लेकिन क्या कभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक अफसोस होता है कि काश मेरे पास उस समय मैं इतना सक्षम होता, या मेरा परिवार इतना सक्षम होता कि मैं विदेश जा पाता, तो आज मैं इंजीनियर होता या कहीं और होता या विदेश में होता। कभी ऐसा लगता है? ईमानदारी से बोला जाए तो शुरुआती दौर में कुछ दिन तक लगा था, लेकिन जब पहला साल का रिजल्ट आया और ऐसे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी, तब धीरे 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 घटने लगा। 2-4 साल में तो खत्म हो गया। आज तो बहुत अच्छा लगता है, और जो पुराने लोग बोल गए हैं वो सच है कि जो तेरे जिंदगी में होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा भी अच्छे के लिए। तो कभी कभी आप बहुत कुछ मेहनत करेंगे किसी चीज के आगे बढ़ने के लिए, तो प्रकृति आपको रोक देती है, दूसरे दिशा में ले जाती है, तो समझिए शुभ संकेत है। तो कभी अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। मान लिया जाए कि मैं कैम्ब्रिज में जाता, कुछ पढ़ता, कहीं प्रोफेसर में लग जाता किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों से बातचीत नहीं होती, ऋचा जी का इंटरव्यू आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो अच्छा होता है, इतने बच्चे नहीं सफल होते, इतनी अच्छी फिल्म लोगों को जो प्रेरणा दी वो नहीं बन पाती। तो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति को आप अच्छे में कैसे बदल सकते, इसका प्रयास करना बहुत जरूरी है। आज मुझे लगता है मिलेनियल मैम्स के मंच पर हैं हम, तो एक चीज का जरूर बात करनी होगी, और मैं वहां से शुरू करूंगी। जब, जैसा मैंने कहा, 2010 में जब मैंने आनंद का इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू खत्म करते करते मैंने इनसे एक बात कही थी कि मुझे आपसे एक शिकायत है, आपके यहाँ आप लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी जब हम अगली बार मिले तो आपके यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स भी हों। तब इन्होंने कहा कि हाँ, फैमिली उसकी वजह से, सोसाइटी की उसकी वजह से लड़कियां नहीं आती। और अभी हाल में पिछले साल मैंने निधि झा का इंटरव्यू किया। निधि झा एक ऐसी बच्ची है जो बनारस से आनंद के यहाँ पढ़ने गई, उसके पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, और उसके बाद उसके ऊपर एक फ्रेंच फिल्म में उसको फीचर किया गया। आनंद, लड़कियों के ये जो जर्नी 2010 में एक भी लड़की आपके पास नहीं थी, अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लड़कियों की स्थिति कितनी बेहतर हुई है कॉम्पिटिशन्स के लिए, आपके पास आने का एक जो चाह होती है, और फैमिलीज का सपोर्ट कितना होता है, ये थोड़ा समझाएं हमें। सही बोल रही ऋचा जी। 12 साल पहले हमारे पास एक भी लड़कियां नहीं आती थी। फिर ऋचा जी ने समझाया कि देखिए, कुछ उनको रिलैक्स करिए, कुछ उनको प्रोत्साहन दीजिए, तब ना आएंगी। भाई, बिहार जैसे जगहों पर बच्चियों का पढ़ना ही मुश्किल है। फिर उसके बाद अगर पढ़ाई करती है तो माँ पिता सोचते हैं कि चलो भाई नर्स बन जाएगी, टीचर बन जाएगी। गरीब घर की बात बता रहे, तो बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर बनना तो कोई मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग सोच सकते, और इंजीनियर बनने की तो बात ही दूर थी। लेकिन ऋचा जी के एडवाइस पर कई लोगों ने कहा, तो मैंने प्रयास किया। प्रयास करते 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 एक दो करते करते अब हर साल 2-3-4 बच्चियां होती हैं, और वो IIT तक पहुंचती है। चाहे निधि की बात करें या प्रज्ञा की बात करें, बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे जगह पर
पहुंची है, या टिंकल जैन है, बहुत सारी बच्चियां पहुंची है जिन्होंने अच्छे मकाम हासिल किए। आनंद, आपके पास चलिए वो बच्चे तो आते हैं जो इंजीनियर बनना ही चाहते हैं, सपना होता है, और लेकिन अगर मैं हमारे जैसे स्टूडेंट्स के बारे में पूछूं जिन्हें मैथ्स कभी बचपन से, मुझे लगता है जो हमारे साथ 1000 लोग जुड़े हैं तो बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिन्हें कभी मैथ्स समझ में ही नहीं आई, क्या कभी ऐसे स्टूडेंट को आपने पढ़ाया? क्योंकि आज टीचर्स डे इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिसके सर के ऊपर से मैथ्स निकल जाए या जिसको खौफ, फोबिया हो मैथ्स का, ऐसे बच्चों को आप कैसे एड्रेस करते हैं? बहुत ऐसे बच्चों को पढ़ाया। अच्छे टीचर का यही डिफिनेशन है कि वो जिसमें इंटरेस्ट ना रहे उसमें प्यास जगा दे, जो प्यास जगाए वही एक शिक्षक है। तो हमने बहुत ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में नहीं इंटरेस्ट होने का एक ही मात्र कारण है कि शुरुआती दौर पर ही बच्चा मैथमेटिक्स को नहीं समझता है। मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल उसको समझाना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानता है उसका फार्मूला, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट वो नहीं समझता है। कोई भी फार्मूला रट लेता है, उसका प्रूफ नहीं जानता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज करता है, लेकिन ऐसा करने से क्यों होता है नहीं जानता है। तो धीरे धीरे चीजें उस पर बोझ बनते चली जाती है, वो रटंत विद्या करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वो कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को मैं लाता हूं तो उनको हाउ एंड व्हाई समझाता हूं। अगर क्लास 9th का बच्चा है, जरूरत 5th क्लास से, तो 5th क्लास से हम लोग पढ़ाते हैं। उसको दिखा 2-4 दिन में उसको थोड़ा कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा करते करते उसको वहां तक लाते हैं, हाउ एंड व्हाई समझाते हैं और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल जीवन से जोड़कर समझाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो मतलब ये मंत्रा है कि अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है टीचर्स के पढ़ाने की अप्रोच बदलनी चाहिए। काश मुझे बचपन में आपके साथ टीचर मिला होता। हम थोड़े थोड़े सवाल यहाँ जो ग्रुप से आए हैं वो भी लेना शुरू कर देते हैं। रचना जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछना चाह रही हैं। डू यू फील दैट द NEP विल हेल्प प्रिजर्व आवर टैलेंट and less students will go abroad to study? Any basic guideline for time management for kids in class 9 and above? There's always a lag between time available and work pending. तो बेसिकली 2 हिस्सों में ये सवाल है कि एक तो क्या आपको लगता है नई शिक्षा नीति से बच्चे देश में ज्यादा रहेंगे, बाहर जाने से रुकेंगे, टैलेंट हमारे पास रहेगा, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जो क्लास 9th के ऊपर जो बच्चे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाया जाए? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। इससे सभी भाषाओं में पढ़ाई जाएगी पढ़ाई हमारी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो गरीब घर के थे, वो इंग्लिश तो छोड़ दीजिए हिंदी में भी चीजों को ठीक से नहीं समझ पाते थे। तो रीजनल लैंग्वेज में समझेंगे। और जो लोग इसका विरोध करते हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा को कम से कम बीज है तो उसको अंकुरित होने का तो मौका मिलेगा, बाद में वो पौधा और वृक्ष बनेगा। तो ये शिक्षा नीति की बहुत ही खासियत है। और शिक्षा नीति तो अच्छी है, अब हम जैसे सभी शिक्षकों की नीयत अच्छी हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा समय दीजिए और जो अच्छा है उस पर थोड़ा कम दीजिए। और उससे सबसे बड़ी बात है कि आप समय का जितना हो सके सदुपयोग करिए। किताब लेके पढ़ना ही पढ़ाई नहीं होती, आपके दिमाग में खाते सोते जागते हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जैसे हमारे अभी बुजुर्ग टीचर आए यहाँ पर और कविता सुनाई, तो वो कविता बैठ के लिखते थोड़ी है, वो खाना खाते हैं तब भी कविता चलती है उनके दिमाग में, वो गाना गाते रहते हैं तब भी कविता चलती है, और कभी कभी पत्नी से बहस होती है तब भी कविता चलती रहती है। तो हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये जरूर। जी जी राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? मैंने अभी देखा उनको। राधेश्याम जी आप हैं हमारे साथ? जी राधेश्याम जी, हमेशा हम आनंद से उनके स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं। मैं चाहूंगी आज चूंकि शिक्षक दिवस है, एज ए टीचर आप आनंद जी के बारे में हमें बताएं, अपना कोई खास तजुर्बा, कोई यादगार लम्हा। राधेश्याम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शशि किरण, खैर उनसे तो मैं ये पूछ चुकी हूँ सवाल। चलिए हम आगे का सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, नमिता पूछ रही हैं, व्हाट इज द मैजिक फैक्टर दैट मिस्टर आनंद कुमार प्रोवाइड्स हिज सुपर 30 चिल्ड्रन व्हिच हेल्प्स देम गेट थ्रू IIT, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड? कोई मैजिक नहीं है मैडम, सारा चीज अपने जुनून का है, पैशन का है। देखिए क्या होता है कि अगर हम चाहते तो IIT का पढ़ाने का कारोबार करते, इसको एक व्यापार में बदल देते, तो पैशन नहीं है।
बच्चे भी सोचते कि एक आनंद कुमार नहीं, उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, खाना खिला रहा है, अपने साथ रख रहा है, दिन रात एक कर रहा है, किसके लिए? तो हम लोगों के। तो राधे श्याम नहीं जुड़ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होगी। राधे श्याम जैसा बच्चा हमेशा सोचता था, कहता था कि सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों में वो भाव पैदा करिए कि वो रात दिन एक कर दे। लेकिन दिक्कत होती है, कई बार कई लोग पूछते कि हमारे बच्चे तो प्रिविलेज क्लास में, इनमें कैसे वो जुनून पैदा हो, कैसे फायर पैदा हो। तो इस तरह के प्रोग्राम को दिखाइए, उन बच्चों से मिलवाइए, तो जरूर अच्छा होगा, उनके मन में भाव होगा। बच्चे जैसा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हो, वैसे ही करते। तो उनके आसपास का माहौल को अच्छा करिए और ताकि वो इंस्पायर हो सके और अच्छा काम कर सके। यहाँ पे मैं अपना सवाल पूछना चाहूंगी आनंद, चूंकि मैं इतना आपके साथ, आपका बच्चों के साथ जुड़ाव देखा है, कभी ये स्थिति भी आई कि बच्चा, आपको लग रहा है उस बच्चे में जुनून है, आना चाह रहा है, लेकिन आपकी एक लिमिट है ना, आप 30 से ज्यादा या 35 आप कितने बच्चों को लेंगे, तो कभी बहुत दिल पर बोझ रखकर कहना पड़ा हो कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, और क्या बीतती है उस वक्त आप पर? बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन प्रयास कभी असफल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा एकदम जिद कर रहा है, नहीं नहीं, समझाया चला गया, फिर जिद किया, समझा, लेकिन अगर वो बार बार आता है तो हार के हम कहते हैं अच्छा आओ बैठो पढ़ो, पढ़ाई में क्या रोक दे। तो होता है, आप उसमें थ्रस्ट है, प्यास है, पढ़ने की ललक है, वो बार बार प्रयास कर रहा है, तो जीवन में सफल जरूर होगा। इस सिद्धांत पर उसको हम लोग रख लेते हैं। तो अच्छा, नमिता जी का ही एक और सवाल है कि नाउ डेज चिल्ड्रन आर, हालांकि नाउ डेज नहीं, हमेशा से हो ही रहा है, चिल्ड्रन आर सेंट टू कोचिंग सेंटर्स इन कोटा एंड आंध्र प्रदेश टू प्रिपेयर फॉर IIT एग्जाम्स। हमारे यूपी में लखनऊ कानपुर बहुत जाते हैं बच्चे। डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? और दूसरा उसी का सवाल है, व्हाट आर द फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ कैन वी रेक्टिफाई दिस? तो पहले तो कोचिंग सेंटर जो भेजते हैं, देखिए, ये कोटा जाना, आंध्रा जाना, लखनऊ जाना कोई जरूरी नहीं है। बच्चों को अगर उचित मार्गदर्शन मिले तो वो कहीं भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि मार्गदर्शन की जरूरत है। अभी सरकार से हमने रिक्वेस्ट किया कि इस कोरोना संकट में आप क्या कर रहे हैं, आप एक टेलीविजन चैनल खोलिए, 24/7 खोलिए, क्योंकि आप किसानों के लिए किसान चैनल खोले हुए, इस तरह से एक एजुकेशन पर खोलिए। हमने बहुत लिखा, बहुत रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट मान भी गई है ऐसा चैलेंज चलाने के लिए कि भाई जिसमें बच्चों की पढ़ाई होगी। तो अगर टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से बच्चों तक हम लोग मार्गदर्शन पहुंचाते रहे, उनको बताते रहे, तो बच्चा कहीं से भी कुछ अच्छा कर सकता है। और उसका दूसरा पार्ट था कि व्हाट आर द फ्लॉज इन, आपको क्या लगता है अभी जो अब नई शिक्षा नीति की तो आपने तारीफ करी, लेकिन अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम और कैसे उसको ठीक करें? देखिए, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सबसे बड़ी कमी है टीचर्स ट्रेनिंग की। सरकार को चाहिए कि टीचर्स को ट्रेन करते रहे, नए टेक्नोलॉजी के साथ, पढ़ाने के टेक्निक के साथ। तो अगर हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे, उनमें जुनून पैदा करेंगे, उनका सम्मान देंगे, तो जरूर कुछ अच्छा होगा। जैसे आप लोगों ने आज, बहुत आदमी बोलता है, हमसे ही पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि आप पर इतना हमला होता है, कभी कभी आप लोगों को इतने परेशानियों में लोग डालते हैं, फिर भी आप ये प्रोग्राम क्यों चलाते हैं? क्योंकि भाई आप लोग जैसा आदमी मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। इतना अच्छा आपने इंट्रो बनाया, ऋचा जी ने इतनी तारीफ की, इतने अच्छे जवाब आए, तो यही में हौसला अफजाई का कारण बनता है। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि लाख परिस्थितियों में भी आप लोगों का उत्साह बनाए रखें, उनको मोटिवेट करें, इंकरेज करें, चीजें अच्छी। अच्छा, शिरीषा है, इन्होंने 2 सवाल पूछे, लेकिन उसका पहला हिस्सा ही मैं आपसे पूछूंगी, दूसरा मैं शशि किरण से पूछूंगी। पहला सवाल है, व्हाई इज देयर ओनली वन आनंद कुमार? एक ही आनंद कुमार क्यों? अब फिल्म आ गई है, हर माता पिता, आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा शिक्षक मिले, लेकिन बताइए कितने माता पिता हैं, ईमानदारी से बताइए कितने पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं हमारा बच्चा भी बड़ा होकर शिक्षक बने। आज शिक्षक दिवस पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो फिल्म देखने के बाद हमारे पास बहुत सारा ईमेल्स आया, बहुत लोग ईमेल लिखे, उसमें लिखा कि हमारा बेटा बेटी फिल्म देखने के बाद बोला कि पापा मैं बड़ा होके फिल्म देखी है, समझी है, बड़ा होके मैं बनूंगी शिक्षिका, मैं टीचर बनूंगी, टीचर बनूंगा। तो ये भाव आया। तो अगर हम लोग सब मिलकर अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनका उत्साहवर्धन करें, तो अच्छे टीचर जरूर मिलेंगे और एक नहीं लाखों करोड़ों आनंद कुमार आएगा। तो जरूरत इस बात की कि हम लोग इस सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाएं। जी, लेकिन आनंद, यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि आप सिर्फ एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं, आप चूंकि एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनके पास ना सुविधाएं हैं, ना संसाधन है। नहीं तो मेरा दिल आज भर आया ऋचा जी, आपने अच्छा इंसान बताया।
इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। हम अपने बच्चों को, हमारे पिताजी बोलते थे, मैं बहुत भावुक हो गया कि बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अच्छा टीचर बनना, ना बनना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इंसान जरूर बनना। इसलिए बहुत बहुत आपका वो तो निसंदेह आप हैं। अच्छा, अब इसी सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो मैं शशि किरण से जवाब चाहूंगी। शिरीषा पूछ रही है, आईआईटी कोचिंग के अलावा आनंद कुमार के स्टूडेंट्स उनसे लाइफ लेसन्स क्या सीखते हैं? सबसे बड़ा तो ऋचा जी सीखने का जो है, जैसा आनंद सर ने बताया, उनके खुद के संघर्ष, और संघर्ष कैसे जो है आप लगातार अगर एकाग्र भाव से करते रहे, एक अपने लक्ष्य को अगर साझे रखें तो जरूर उस पर आपको सफलता मिलेगी। सर ने जैसा बताया कि आप भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, कितना भी आप बड़े कॉलेज में पढ़े, एक अच्छा व्यक्तित्व तभी आपका निखर के आएगा जबकि आप जीवन के उन सारे छोटे छोटे संघर्षों से गुजरते हैं। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, जैसा कि आनंद सर है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में कि उनका एक छोटा सा अंश भी बन पाऊँ। भगवान करे मुझे ऐसा सर का सहयोग रहेगा तो जरूर मैं, और आशीर्वाद रहेगा तो मैं बन पाऊंगा। तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आनंद सर ने अपना सुपर 30 का किया, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करूं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा अगर कुछ कर पाए, कुछ और बच्चों को हम ऐसा पढ़ा पाए जो कि जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसा कि मैं था, जैसा कि और भी राधेश्याम, निधि, और जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में झेला और फिर निखर के आया। तो ऐसे कुछ लोगों को हम सहयोग करके और अच्छा बना पाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। शशि किरण, जब कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, या जब आप सब बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक तो ये स्ट्रेस की सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, दूसरा जिन परिवारों से आए हैं वहां पर एक अलग तरह का स्ट्रेस ये होता है कि भाई इससे तो काम पर लग जाते हैं, नहीं अगर पापा ठेला लगाते हैं तो पापा के साथ बहुत लोग ताना भी मारते हैं कि इससे अच्छा अपने बेटे को काम पे लगा लेते हैं। ऐसे में कई बार जब कोई बच्चा टूटता होगा तब आनंद उस बच्चे को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उठाते हैं, मैं चाहूंगी आप बताएं हमको आज। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था, मेंटल प्रेशर होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि घर की परिस्थितियां अच्छी होती नहीं थी। तो सबसे पहले ये लगता कि अगर फेल कर गए तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है, लाइफ में क्या होगा। आपने जैसा बताया कि आपकी इंटरव्यू के दौरान ही किसी ने बोला कि गरीबी क्या होती है, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो गरीबी की परिस्थिति होती है वो जो गुजरता है उसी से वही बता सकता है। सही बात। और फिर लेकिन ये मेंटल स्ट्रेस ही सर का जो पढ़ाने का तरीका होता था, और सर का जो संबल देने का तरीका होता था कि वो इन्हीं चीजों में हीरो को तराशते थे। जितना ज्यादा प्रेशर होता है, आपने सुना होगा, डायमंड उतना ही ज्यादा अच्छा निखर के आता है। तो ये प्रेशर जो है हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करती थी, और जूझते थे कि जितना ज्यादा हमारे पीछे का फॉलबैक अरेंजमेंट नहीं है उतनी ही ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो उस जगह पे वापस जाने की हमें ना रहे और ऊंचे मुकाम पे ही पहुंचेंगे सीधे। सो ऑफ कोर्स ये प्रेशर जो रहता था एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह काम करता था। सर इतना ज्यादा मोटिवेट करके रखते थे, इतना ज्यादा उनकी लाइफ के स्ट्रगल को देख करके इतना मोटिवेशन होता था कि ऐसा लगता नहीं था कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, बस सर का आशीर्वाद रहता था और सारे बच्चे सफल होते थे और एक विश्वास रहता था कि हो जाएगा। जी जी ठीक है। आनंद जी, सुनीता पूछ रही हैं, would you look at having more such institutions in many more parts of rural India खासकर? Are you getting enough financial support? आप और सेंटर्स अपने खोलना चाहेंगे खासकर ग्रामीण इलाकों में, और क्या आपके पास आपको आर्थिक मदद मिल रही है इसके लिए कहीं से? आर्थिक मदद की अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो कोरोना संकट के बाद, इस पेंडेमिक के बाद, हम लोग एक बड़ा सुपर 30 का रेसिडेंशियल स्कूल खोलने जा रहे हैं क्लास 6 से 12, और साथ साथ हम लोग ऑनलाइन के जरिए में एक नहीं कई सेंटर्स बना के गांव देहात में कैसे पहुंचे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट पर हम लोग काम अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ, अभी चैट में आया है सवाल, शालिनी जालान पूछ रही हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, कितने साल आपके पास रहते हैं, और आप ये पूरा खर्चा कैसे उठाते हैं, मॉनेटरी इश्यूज आपके कैसे? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। पहले जब पुराना पैटर्न था आईआईटी का तो 1 साल के लिए बच्चे आते थे 12th पास करके, अब 10th पास करके ही 2 साल के लिए बच्चे आते हैं, और हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहीं लेक्चर देते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसी से हम लोगों के परिवार की और बच्चों की दाल रोटी चलती है, खाना खर्चा चलता है। क्या बात है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, दिनीत दादू पूछ रहे हैं, the transition to a more knowledge based learning than जो रट लेते हैं बच्चे, is it a path in the right direction and do you think this will benefit your students?
कि ज्यादा नॉलेज बेस्ड पढ़ाई की जाए बजाय बच्चों को कि रट लो। मैथ्स के भी हम लोग तो फॉर्मूले टेबल सब रट लेते थे। अभी हमने बताया है कि रटने को एकदम अवॉइड करिए और बच्चों को समझाने का प्रयास करिए। समझ दो चीजों से बढ़ती है, एक तो अच्छे तरीके से समझाने से और दूसरा उस पर अभ्यास कराने से। अगर दोनों चीजें हों तो बहुत अच्छे से बात होगी। और यही एक सवाल इन्हीं का और है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, बट हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन एंड इन द डार्केस्ट डेज व्हेन द गोइंग वाज टफ व्हाट केप्ट यू गोइंग? तो आपके सच्चाई है कि इंस्पिरेशन बहुत कौन अच्छा है? आप लोग हमारी प्रेरणा के स्रोत है। सच बता रहे हैं, अभी हमने बताया कि हम पर हमले होते हैं, गोलियां चलती है। आप तो फिल्म में एक बार देखे हमला, वैसे ऐसे कई हमले होते हैं। तो उसके लिए सुरक्षा भी दी जाती है। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुरक्षा दी कि हम जहां चले कुछ कमांडो मुझे सेव करे, लेकिन वो सब चीजें बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोग जो तालियां बजाते हैं, प्रोग्राम के पहले गाना सुनाते हैं, मेरा परिचय देते हैं, वही हमारे धमनियों में खून को तेजी से बहा देता है और फिर मैं नए जोश पे लग जाता हूँ। लेकिन जब जैसा गोइंग गेट्स टफ अभी अब हो गया ना आनंद जी, ये पहचान तो अब हो गई। 10-15 साल पहले का भी मुझे आपका संघर्ष पता है। उस वक्त जब निराशा होती थी, और बच्चों को भी देखते होंगे, तब इतना कहीं आर्थिक मदद आपने कहीं से ली नहीं। व्हाट केप्ट यू गोइंग दैट टाइम? तब भी तो लगता होगा छोड़ के कहीं नौकरी कर ले, आराम की जिंदगी जिएंगे। लगता था, बहुत बार लगता है कि सुपर 30 छोड़ दे, बेकार चला रहे हैं। लेकिन हमारे फादर ने सिखाया था, बेटा जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, तुम संघर्ष करते रहो, सवेरा तुम्हारे उतने ही नजदीक आएगा। तो ये सब बातों को सुनकर फिर दोबारा उत्साह जाग जाता है। जितना बड़ा तेरे जीवन में विलेन आएगा उतना बड़ा हीरो बन जाओगे। जितनी कठिन परिस्थितियों से लड़ोगे उतनी मिठास होगी सफलता में। ये सब बातें जो बचपन में पिताजी ने सिखाई थी, आज मुझे संघर्ष के दौर पे काम आता है, और उन्हीं बातों के आधार पर फिर मैं अपने आप को इसी लाइन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ। क्या बात है। एक बड़ा अच्छा सवाल है, नीलांजलि अग्रवाल पूछ रही हैं कि क्या आप अपने एक्स स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो भी पार्ट टाइम टीचर्स बने, वो भी पढ़ाएं दूसरों को? जब भाई जो फायदा उन्हें मिला है, जो सुविधाएं आपसे उन्हें मिली, वो भी तो करें। हम लोग अक्सर स्टूडेंट को बोलते हैं कि आइए और पढ़ाइए, और बहुत खुशी की बात है, चाहे अभिषेक अमेरिका से हो, शशि नारायण लंदन से हो, बाहर से भी बच्चे आते हैं तो 2-4 दिन का टाइम देते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं। या ऋचिक सिन्हा एक मेरा स्टूडेंट है जो पढ़ने लिखने के बाद टीचिंग का ही काम कर रहा है, सुपर 30 के बच्चों को खास कर पढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गिव बैक टू सोसाइटी के लिए तो सब सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है 2-4 सालों में हमारी आर्थिक स्थिति 10 सालों में अच्छी होगी तब करेंगे, लेकिन कुछ ही इसकी बगैर परवाह किए आगे बढ़ जाते हैं, करने लग जाते हैं। विवान पूछ रहे हैं सुपर 30 किस साल में शुरू हुआ था? सुपर 30 शुरू 2002 में हुआ, आज समझिए लगभग 18 साल। क्या बात है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, श्रुति सराओगी पूछ रही हैं कि मैं देख रही हूँ कि आजकल बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता कि वो जिंदगी में क्या करना चाह रहे, बट मुझे लगता है कि शायद उन बच्चों की बात कर रही हैं जो अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास के। However, they need to decide by the time they reach class 11th तक आके डिसाइड भी करने होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उनको सही पैशन की तरफ कैसे गाइड किया जाए? देखिए, बच्चों को फलने फूलने दीजिए। बच्चों को पता इसलिए नहीं चलता कि उनकी इच्छाएं कुछ और होती है और माता पिता दबाव बनाते हैं। आप देखिए, ऋचा जी को बताना चाहिए आप अपनी बच्ची के बारे में कि बच्ची ठीक है, उसको गाना गाना अच्छा लगता है, गाना भी गाती है, संगीत भी करती है, ऋचा जी रोकती थोड़ी है। और आज देखिए पढ़ लिख कर वैंकूवर कनाडा में पहुंच गई है। तो कहने का मेरा मतलब कि बच्चों पर दबाव मत डालिए, उनको प्यार से उनको समझने का प्रयास करिए। वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में आप मोटिवेट करिए। इससे जुड़ा एक बड़ा प्यारा सवाल आया है सरिता लोही, और ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था। सर, have any of your children experienced failure in getting into IIT, and then which direction do they head towards? तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे IIT नहीं करते, हम उनको लाख समझाते हैं फिर भी वो नहीं आते मिलने के। भाई IIT नहीं हुआ कोई बात नहीं, आते जाते रहो, मिलो। 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद वो बच्चा आता है और बोलता है कि मैं अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर हूं। कि क्यों भाई? तो मैं सर IIT नहीं हुआ, मैं नहीं आ पाया आपके सामने, अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं NIT से इंजीनियरिंग करके और ज्यादा मेहनत की, मेरे पास और बड़ी चुनौती थी और चैलेंज था, और आज मैं यहाँ पर हूं। तो ऐसे कई उदाहरण मिले। आज तक कोई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फेल नहीं किया है। कुछ क्षण जिंदगी
एक इम्तिहान जिंदगी को परिभाषित नहीं करती। एक इम्तिहान में फेल हो सकता है, जीवन के रेस में कभी फेल मेरा बच्चा नहीं हो सकता। क्या बात है। विभा बियानी का ही सवाल है, व्हाई यू चोज दिस नंबर 30? क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोग अपने भाई से, माता जी से डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों की जो क्षमता थी 30 बच्चों को रखने के लिए मैक्सिमम थी, या खिलाने पिलाने की डोनेशन तो लेना नहीं था, इसीलिए 30 बच्चों को लिया। लेकिन आने वाले भविष्य में जैसा बताया स्कूल खोलने का प्लान है, तब और बड़ा किया जाएगा, ज्यादा बच्चे। जी, आजकल अभी मैं कुछ सवाल देख रही थी, मेरी नजर से उड़ भी गए, लेकिन अब लॉकडाउन और ये सब आनंद जी आप देख रहे हैं, एज ए टीचर आपको क्या लगता है, बच्चा सामने बैठा है और आप जब पढ़ा रहे हैं, और एक अब आप ऑनलाइन, या अब आप एक आनंद कुमार पूरे देश में तो हो नहीं सकते, तो आपके सेंटर्स भी खुलेंगे, बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बट डू यू थिंक वो 1-on-1 कनेक्ट वाली बात आ सकती है कभी? आप सच्चाई बताइए ऋचा जी, आपको नहीं लग रहा है कि आनंद कुमार सामने बात कर रहा है, या दर्शक को नहीं लग रहा है कि आपके सामने हम बैठे हुए हैं? तो टीचर कैसा है, शिक्षक कैसे है, मास्टर कैसा, इस पर डिपेंड करता है। अच्छे टीचर कहीं भी माहौल पैदा कर देंगे, और जो नहीं पढ़ाना चाहेंगे और नहीं उनकी इच्छा होगी, दबाव में शिक्षक बनेंगे और फिजिकली भी आके बैठेंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चा पीछे कुछ दूसरा काम करेगा। अच्छा शिक्षक वही है जो कहीं भी समा बांध, मेरा कहने का मतलब। बहुत बढ़िया। एक नम्रता ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि आज तो आपने लाइफ का मीनिंग सुना दिया, आप क्या भागवत गीता का सहारा लेते हैं? स्वामी विवेकानंद, भागवत गीता, हर चीजों को पढ़ते। देखिए हमारे जो भारतीय शास्त्र है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई है, और हमको जरूरत है हम लोगों के कि उनसे जो भी अच्छी बातें सीखे और अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते, कैसे उसका फायदा उठा सकते, प्रयास जरूर करें। सुषमा बुबना जी एक सवाल पूछ रही है, मुझे इसका जवाब पता है लेकिन मैं चाहूंगी आनंद दें। हाउ मच क्रेडिट डू यू गिव टू योर वाइफ फॉर द सक्सेस ऑफ सुपर 30? सिर्फ वाइफ नहीं, आपकी माँ, आपका भाई, पूरा परिवार, तो मैं चाहूंगी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएं। नहीं, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी मेहनत ना करे, थोड़ा भी साथ ना दे, तो सुपर 30 नहीं चल सकता है। और वाइफ का भी है, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई किया, कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोका, आजादी दी, जहां जाओ जितना पढ़ाओ, कभी भी उन्होंने नहीं कहा। शुरुआती दौर में वो 1-2 बार संघर्ष की इस बात पर कि भाई आप बच्चों को पढ़ाते, लेकिन जब हमारे साथ रहने लगी और बच्चों के रिजल्ट आने लगे, और वो ऐसे परिवार जिनको जो उनकी रोटी नसीब नहीं थी, वो बड़े बड़े जगहों पर जाने लगे, अच्छे अच्छे IIT में, तो देख के बोली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करिए, और साथ देती है जहां तक होगा। तो बिना परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ नहीं बड़ा कुछ होता है, ये क्रेडिट सभी को जाता है। जी, और मैं कहना चाहूंगी मतलब इतने बच्चे एक घर में रहना और उनके लिए खाना बनाना, कोई भी चीज, मतलब आनंद तो सिर्फ पढ़ा रहे थे, बाकी सारी चीजें तो इनकी माँ और इनकी पत्नी संभाल रही थी। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, पद्मप्रिया कह रही हैं कि आप अपने स्कूल या कॉलेज डेज का कुछ संस्मरण शेयर करना चाहेंगे? आपके दिन कैसे थे? देखिए, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने स्कूल की एक कहानी बता रहे हैं। जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, और हमारे मोहल्ले में एक सिख परिवार रहता था, सरदार जी रहते थे जो बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर थे। हम लोग उनके सामने बहुत गरीब थे, तो उनको दया आया कि बेचारा कष्ट में रहता है, गरीब आदमी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, तुम आओ और क्लास 6 में होने, मेरे बच्चे क्लास 3 में है और 4th में, उनको तुम मैथ पढ़ाओ। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि भाई टीचर बनने का मुझे ये मौका मिला इतनी कम उम्र में, मेरी उम्र भी बहुत कम थी। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं उसी कम उम्र में नोट्स बनाता था, सोचता था इसको कैसे समझाया जाए, समझाता था। 5वें दिन जब मैं पढ़ा के उठ रहा था तो दोनों बच्चे बोले प्रणाम सर। तो जो सर बोले, टीचर की उपाधि दी, वो मेरे कानों में आज तक गूंजती है वो बात, और वही बात जो है मुझे टीचर बनने के लिए प्रेरित की। और मैं उसी दिन से सोच लिया कि मुझे कुछ भी करना है, देश में, विदेश में, स्लम में, कहीं भी पढ़ाना है, कुछ भी करना है, लेकिन बनना है टीचर ही। क्या बात। चलिए, आनंद जी से तो बातचीत अगर शुरू हो जाए तो बंद करने का मन नहीं होता है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ले लेती हूँ। पूजा अग्रवाल ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि आनंद जी, डू यू मिस एन आनंद जी इन योर स्कूल लाइफ? आपको लगता है आपकी जिंदगी में एक आनंद कुमार होता है तो आप शायद कुछ और कर पाते? नहीं, बहुत आनंद कुमार है। आज शशि है, राधे श्याम है। दुर्भाग्य से राधे श्याम से मुलाकात नहीं हुई, बेचारा फिल्म रिलीज के समय पूरा दौड़ा था,
अभी व्हाट्सएप पर मैसेज दिया, बहुत देर पर आया कि सर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्या आज मेरा दुर्भाग्य है। कि सर कोई बात नहीं, मौके जिंदगी में हमेशा मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आनंद कुमार हैं, मैं ही नहीं हूं, हमारे स्टूडेंट भी है और देश में हजारों लाखों आनंद कुमार है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप वैसे आनंद कुमार को बुला के सम्मान दें, मान दें, उनका हौसला अफजाई करें और ऋचा जी जैसे मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर लाके दुनिया को बताएं कि आनंद कुमार वैसे और भी ऋचा जी लोगों को लाए, सम्मान दें, ताकि इनसे इंस्पिरेशन लेके और आनंद कुमार बन सके। जी, तो एक बार फिर से इस चर्चा को खत्म करने से पहले शिक्षक दिवस की आनंद जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और वाकई हम चाहेंगे, इस देश के बच्चों को बहुत जरूरत है कि हजारों लाखों आनंद कुमार हो और हम में से हर कोई इंस्पायर्ड हो कि जिस भी सब्जेक्ट में हमको थोड़ा बहुत भी आता हो, हम उस बच्चे तक पहुंचा पाए जिसके पास शायद स्कूल जाने के पैसे की, मतलब देने की वो नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। तो आज बहुत इंस्पायर किया आपने हम सबको, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी अनुराधा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऋचा जी, आपकी और आनंद कुमार जी की बातें हम सबको इतना विलीन कर गई हैं कि मन अभी भरा नहीं है, लेकिन समय तो सीमित है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। हमारी अपनी मैम ज्योति बेरलिया जी ने टीचर्स डे पे एक छोटी सी सुंदर सी कविता लिखी है। अगर सब लोग अपने आप को स्पीकर व्यू पे कर लें तो कविता का एक्सपीरियंस बेटर होगा। तो आइए ज्योति और श्वेता को सुने। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। ईश्वर तेरी सृष्टि में अनेक नजारे, कुछ देखे कुछ अनदेखे, कुछ देखे कुछ अनदेखे, लगते कभी कुछ उलझे से, लगते कभी कुछ उलझे से। लेकिन जब मैंने गुरु दृष्टि से देखा, जब मैंने गुरु दृष्टि से देखा तो पाया अद्भुत, दिव्य और कितने सरल सारे। गुरु कभी छड़ी बन सहारा दे जब आए अभिमान तो, गुरु छड़ी बन सहारा दे जब आए अभिमान तो, वही छड़ी जोर से फटकारा भी दे, और छड़ी को जोर से फटकारा भी दे। कभी कान पकड़ सही राह दिखाए, हाँ कभी कान पकड़ सही राह भी दिखाए, तो कभी आंखों से ही पीड़ा भागता, सच आंखों से पीड़ा भागता। समझ न पाऊं मैं कैसे सारे किरदार उनमें समाए, समझ न पाऊं मैं कैसे सारे किरदार उनमें समाए। क्योंकि कभी माँ बन प्यार लुटाते तो कभी पिता बन संसार दिखाते। सच माँ बन प्यार लुटाते तो पिता बन संसार दिखाते। वाह। और सुनो, कभी सारथी बन कहते उठ युद्ध कर, कभी सारथी बन कहते उठ युद्ध कर, लेकिन उसके पहले अंतर मन के द्वंद को शांत करना भी सिखाते। अरे वो शिष्य भी तो पार्थ ही था। हाँ सही पहचाना, वह शिष्य भी तो पार्थ ही था, लेकिन हम जैसे धूमिल दृष्टि वालों को कभी संजय बन, हाँ कभी संजय सर बन मिथ्या जगत का पर्दा हटा दूरदर्शिता का ज्ञान कराते। कभी विष्णु बन इस सृष्टि में पहचान बनाना सिखाते, कभी विष्णु सर इस सृष्टि में अपनी पहचान कराना सिखाते। वे कहते अपने को पहचान, लक्ष्य साध और बढ़ जा, लक्ष्य को साध और बढ़ जा। कोई जंजीर न रोक पाए तुझको, क्योंकि न पार्थ से कम मान मुझको, न पार्थ से कम मान। गुरु की महिमा जितनी करूं उतनी थोड़ी। सच गुरु की महिमा जितनी करूं उतनी थोड़ी। क्योंकि गुरु बिन न गति मोरी। थैंक यू। क्योंकि गुरु बिन न गति मोरी। हाउ ट्रू। थैंक यू ज्योति एंड श्वेता फॉर दिस ब्यूटिफुल रेंडिशन। ऋचा जी, आज आप टाइम निकाल के आए हमारे प्रोग्राम को एंकर करने।
थैंक यू सो मच। आनंद कुमार जी की कई बातें आप बात बात में निकाल सकी जो शायद वो अपने से भी कभी नहीं बोलते। द मार्क ऑफ अ गुड एंकर एंड मॉडरेटर। थैंक यू। आनंद कुमार जी, आपको थैंक यू कैसे कहा जाए, बहुत ही इनएडिक्वेट लगता है। मिलेनियम मैम्स का ये ट्रेडिशन रहा है कि टीचर्स डे पे हम अपने गुरु धानुका सर और भुवान्या सर को श्रद्धांजलि देते हैं। इस साल आप जूम पे अपने 2 स्टूडेंट्स राधेश्याम जी और शशि किरण जी को साथ लाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमको इंस्पायर किए और मिलेनियम मैम्स के प्रोग्राम को सुपर सक्सेसफुल बनाया। आप सेल्फलेसनेस और ह्यूमिलिटी के प्रतीक हैं। हमारे गुरुओं की तरह आप भी नॉलेज शेयर करते हैं विद अ पैशन एंड विदाउट एनी बेनिफिट टू सेल्फ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सर, Dhanuka sir, Bhuvania sir, and thank you all the ma'ams for tuning in, all our guests, all our youth members. Thank you so much.